Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSB physics class. So, this class is your lecture 1 on current electricity for your class 12 NEET JEE. So, current electricity already you have been reading from your class 8 and or 8 class 8 onwards. Okay. So, everything same, but new and deeper thinking will be going on. Okay, so let's start with introduction. Okay, so what is current electricity? So basically, you know the water flow in the end direction. So this is a glass tube, and so there is a lots of water is filling here and level is here. So what it is flowing from higher height to lower height according to potential. So higher potential, just like a stone, when you put a stone of how above height, so it is at higher potential. So it is when it is dropping in the ground, it is at lower potential. So just like your water, and there is a heating bodies, and so if it is heated body and our surrounding is low temperature, if it is heated body, and so heat will be going to the environment first. Another one is lower temperature, so heat will go and water है ना, water will go from जो है higher height, so heat will go from higher temperature higher temperature. And similarly, if there is a conductor, it is at high potential and it is, this is a small potential. So capital V is greater than small v. This is a lower potential. It is, then if you put conducting wire, then charge will be going from higher potential to lower potential, and this charge, the flowing of this charge is called current electricity. So just it is a flowing of electron discovered by J.J. Thomson. Okay. So just it is analogous to your different potential. So potential is also analogous to your height of the water and the temperature of these bodies. Okay. So now, so your current is total charge flowing per unit for your जो है steady current है ना. This is for your steady current when the same amount of charge is passing है ना at same time. Okay, so this is total amount of charge by time. If your current is changing, then what also flow rate is changing, then current I equal to जो है आपका या जो मान लीजिए आपका current is current of charge. So here Q equal to save simply I into T, total charge. अब इस केस में when current is changing with time, then at that position में total charge passing in a current integrator is जो है 0 to t टाइम पे IT, this is dt, this is integration है ना. टोटल करंट इंटीग्रेट करके जितना होगा that is the current into time is your total charge. So if there is a function I equal to something है ना, I equal to something t की फंक्शन में, then कुछ टाइम के बाद वो कितना चार्ज हुआ तो उस टाइप का प्रॉब्लम यू कैन हैंडल इट. सो लेट्स आई टी इक्वल टू ट्वाइस टी 5t. सो फॉर 2 सेकेंड हाउ मच करंट इज पासिंग, हाउ मच चार्ज इज पासिंग, कैसे कैलकुलेट करोगे? यूजिंग दिस. So this is the function of time the current is, so you can calculate the charge. Okay, so now let's go to your Ohm's law. It is given by G.S. Ohm in 1828 है ना. That Ohm's law you already did, and every parameter is constant, then current flowing through a circuit I is proportional to the potential difference between the two conductors. So ये जो है आपका I जो है या V जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, सो V प्रोपोर्शनल टू I है ना. सो I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू. सो नाउ so V equal to IR, you know R is the resistance, and again you know R equal to rho L by A, this also you know. So rho is the resistivity है ना,
dimension of resistivity, how much it is? This is L, length of conductor. If this is the conductor, if it is the length of L and this is the cross section area A, so resistance is the rho L by A, that you have already known from your previous class. So resistance, this is resistance ohm, and another is, so its unit hoga ohm centimeter. So if resistivity of copper is 1.76 into 10 to the power minus 6 ohm centimeter, what does it mean? It means if there is a cube of 1 centimeter, जो है cube of 1 centimeter side, then the resistance between two opposite circuit, इसका बीच में जो resistance है, this resistance is 1.76 into 10 to the power minus 6 ohm. This is the significance of जो है resistivity. Now, okay, so again V equal to, so V equal to, this is your IR, so this is equal to IR is equal to R rho L by A, है ना? So I by A, again I by A is the, so if this is the A and the current passing through it is I by A is J, this is current density, okay. I current passing per unit area, so this is J, and V by L or V by L equal to, this is J into rho, and है ना, so J equal to V by L, so you know electric field equal to V by L, है ना, ये तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है ना. So this is E by rho equal to J, or E 1 upon rho is conductivity, है ना. So ये इसका उल्टा, the unit is mho, है ना, MHO, conductivity. तो किसका conductivity ज्यादा है? सिल्वर का, कॉपर का और एल्यूमिनियम का? सिल्वर का conductivity ज्यादा है. So J equal to rho is sigma, this is sigma, this conductivity is sigma, and this is sigma into E. And if you put in differential form, it is put in vector form, J equal to sigma into E is the electric. So this is vector form. This is the another form of Ohm's law. Another form, है ना. So J is sigma E and V equal to IR is the same basically. Okay. We will discuss flow of electron in metal जो है conductor, है ना. So conductor के अंदर जो है electron का flow, so there is a lots of free electron in conductor. Okay. So this is the conductor, lots of free electrons, है ना. अब this electron while it is passing, है ना. अब इसमें क्या होता है, जैसे electron it will passing, there is a vibration of atoms. There is a lot of atoms and there is a free electron, and when it is going through this, it will collide with this atom, है ना. ये atom के साथ collide होता है, due to collision, so its path is say collision of this. So ये atom, sometimes this atom is also vibrating. Even at normal temperature, atoms has a vibration. When the vibration stop at 0 Kelvin, minus 230 degree centigrade, this collision. So at 230 degree centigrade, all atoms at cool position, and that time there is no resistance. This is called superconductivity, है ना. This is temperature में आगे जाएंगे, so every conductor will behave like superconductor. Okay. So now and this origin of resistance. This is the origin of resistance. What is the origin of resistance? The vibration of atom. So if you are heating, then this vibration will increase, है ना. So that time you know the coefficient of resistance, है ना. R equal जो है आपका resistive to rho equal to rho 0 1 plus alpha some constant, है ना. ये आपका resistivity, ये देखिए आपने.
सो ये टेम्परेचर के साथ साथ ये रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इट विल इंक्रीज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ दिस एटम एंड एटम ये इस रास्ते में जा रहे हैं। आप यहाँ पे ये अगर वाइब्रेट करते रहेंगे ऐसा ऐसा है ना, ये लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन होगा, ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होगा, सो इट विल जस्ट कोलाइड विद दिस एटम, सो दैट्स व्हाई दिस इज द origin of resistance। and so the free electrons carrying जो है charges in metal surface and metal conductor, but for your electrolyte there is a two electrode, ये electron and ions both carrying current, both carries current in electrolytes। यहाँ पे ions भी है ना, जो है केटायंस का भी मूव होता है, एनायंस का भी मूव होता है, सो आयंस एंड इलेक्ट्रॉन बोथ कैरीज द करंट। सो नाउ व्हाट इज द डीसी करंट? व्हेन करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट इज कांस्टेंट, दिस इज डायरेक्ट करंट, है ना, दिस इज डायरेक्ट करंट। एंड व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट व्हेन ये करंट इज फ्लोइंग इन डिफरेंट, मतलब ये पीरियडिकली इसका करंट डायरेक्शन, तो आप देखेंगे जब एसी पढ़ाएंगे इसका फ्लो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है जबकि करंट, मान लीजिए आपका सब स्टेशन बहुत दूर है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर में सब स्टेशन है, वहां से आपका जो है करंट जो है एक बार जो है जैसे ऑन किया तुरंत इधर आ गया, है ना। तो इतना जल्दी अगर एसी करंट के लिए क्या होगा, एसी करंट का घर का जो है दिस इज 50 हर्ट्ज, सो इट इज चेंजिंग द जो फ्लो डायरेक्शन इन 50 डायरेक्शन। सो ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन 50 बार इधर आ रहे हैं और 50 बार उधर जा रहे हैं, इस टाइप का नहीं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एसी करंट इज डिफरेंट, इज जस्ट सो ऐसा होगा तो उसका जो स्पीड है ना, सो करंट का जो स्पीड लगभग नियर अबाउट करंट लाइट के वेलोसिटी में। सो अगर ऐसा 50 टाइम अगर लाइट के वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी में उनको मूव करना पड़ेगा 100 किलोमीटर दूर में, अगर 50 बार उसको आना जाना है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ जो ये करंट फ्लो हो रहा है इसी सर्किट में जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इन डायरेक्शन में, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द कन्वेंशन, दिस इज द करंट। So this convention is not valid for AC current. So there is a concept of wave that during the AC current का जो है उस टाइम पे हम बताएंगे, है ना। So now, so this is the AC current and DC current concept. Now let's consider there is a drift. So drift current, इलेक्ट्रॉन का drift velocity सब कैलकुलेट करेंगे। So this is a tube, small tube, है ना। So its area is L, है ना। So is this drift velocity Vd, this is the drift velocity, so velocity of electron, है ना, velocity of electron। So at 1 second how much it is going? Vd, so this distance is Vd, है ना। So Vd and जो है area, so Vd this is the your area। if n is the number density ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब पर यूनिट नंबर डेंसिटी जो माने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका, आप जो 1 सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना जा रहे, है ना। सो आप जो है आपका आई और जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, है ना, टोटल चार्ज ये। सो दिस इज जो है आपका आई करंट। सो 1 सेकेंड में इतना करंट पास कर रहे हैं ना। सो J इक्वल टू, सो आई करंट जो है, आई करंट है, करंट इज द चार्ज पासिंग। सो 1 सेकेंड में मान लीजिए इतना दूर गया Vd, मतलब एक इस टाइप का सिलेंडर कंसीडर किया जहां की इलेक्ट्रॉन इट पास जो है दिस सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। अब यहां से जो है आपका सो इतना 1 सेकेंड में इतना दूर गया, सो इतना दूर इसका एरिया मान लीजिए ए। सो दिस इज द वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर एन रहता है सो इतना वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो टोटल चार्जेस, सो 1 सेकेंड में इतना चार्ज गया, सो दिस इज द करंट। QT इज द करंट ना। सो 1 सेकेंड में अगर कितना चार्ज गया, सो दिस इज द करंट। सो I ओवर E इक्वल टू NeVd। So J current density equal to NeVd. This is another equation.
to remember. So current density is also depends on number of electron per unit volume, electron charge and drift velocity. So this is the drift velocity concept. Okay, now इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पासिंग दिस रीजन विथ अंडर फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस, नॉट सिंगल फोर्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे पास करे? सो देयर इज यहाँ पे मान लीजिए एक बैटरी है ना, ये बैटरी में आप कनेक्टेड है तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है. सो इलेक्ट्रॉन विल गो इज दिस डायरेक्शन एंड करंट विल फ्लो दिस डायरेक्शन, है ना, ये उल्टा है ना. सो अब यहाँ पे सो इसमें कैसे पास कर रहे हैं? सो देयर इज ए वोल्टेज डिफरेंस मीन्स देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V ओवर जो है D डिस्टेंस जो है ना, या इसका अगर लेंथ मान लीजिए V ये है ना L. सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. सो दिस फोर्स इज E into E. So this is the force. So one equation we have obtained, J equal to NeVd, and another one is, so one force is electric field into E, this is the force, and another force is, so when it is passing through this, so there is a lots of atoms, so it's collision, and that collision itself you can take is there's a just like a viscous medium, so some constant into, so the force in viscous medium you know ना, proportional to velocity, ऐसा आपने पढ़ा है ना viscosity में. सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन इधर पास कर रहा है ना, सो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, इसका Vd. सो दिस प्रोपोर्शनल टू K into Vd. सो ये जो है, सो Vd इक्वल टू E by K into E and Vd इक्वल टू म्यू into E. सो दोनों ये जो है, और Vd ये सब तो वेक्टर है, Vd इक्वल टू जो, और म्यू इक्वल टू Vd mod over इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी. मोबिलिटी बाद में सीखेंगे, मोबिलिटी ऑफ ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल, ये दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी, है ना, वेलोसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू. एंड सम टाइम जो है ये आपका Vd इक्वल टू, दिस इज मोबिलिटी. एंड सम टाइम जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E by m into tau. And this is E by m into tau. This is electric field charge and tau is the relaxation time. Tau is the relaxation time, है ना. सो आपका जो है ये क्या रिलेक्शन टाइम, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन, मतलब ये एक एटम है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोलिशन को इधर कोलिशन, इन दोनों सक्सेसिव कोलिशन का बीच का जो टाइम है, दिस इज टाउ. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो. अब यहाँ से आप कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना. बट करंट पहले बोलता था ना, करंट आप 100 किलोमीटर दूर में करंट ऑन करते तो तुरंत एक बहुत ये टाइम पे आ जाता है, मतलब एक सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाता है. अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 80 सेंटीमीटर पर सेकंड होता तो 100 किलोमीटर दूर से थोड़ा जाता है. सो एसी करंट कॉन्सेप्ट इज समथिंग डिफरेंट. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्डर ऑफ. सो एसी कॉन्सेप्ट ऑफ एसी करंट इज डिफरेंट दैट. सो बेसिकली यू कैन कंसीडर जो है आपका जैसे वेव है ना, वेव जैसे ये वेव जैसे पानी के ऊपर ये वेव, जैसे आपने एक पत्थर फेंके ना, जैसे आपने एक चीज बताते हैं, यहाँ पे आपने टिकट काउंटर में आप सिनेमा देखने गए थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, है ना, बहुत सारे लोग खड़े हैं. सो एक बंदा को बहुत हड़बड़ी था, तो उसने क्या किया, सो ही हैज पुश किया उसने. सो धक्का कहाँ लगेगा, इस काउंटर में. सो इनका सब ये जो वेव आके इधर टकराएगा विथ 1 सेकेंड में, है ना, मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसका धक्का उधर चला गया. बट देयर इज ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ दिस सिंगल इंडिविजुअल्स, है ना. सो जस्ट लाइक आपका पानी का ड्रॉप आपने अपने तालाब में फेंके, है ना. सो इसका पानी का जो पार्टिकल इट इज वाइब्रेटिंग
transverse direction है ना, and wave is propagating along the this surface direction. So wave बहुत हाई स्पीड में जाता है, बट पार्टिकल के वेलोसिटी बहुत कम रहता है ना, या ऑलमोस्ट फिक्स रहती है, जैसे सॉलिड होता है तो बिल्कुल ही फिक्स रहता है. सो इस टाइप का कॉन्सेप्ट ये कर सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जस्ट लाइक योर पार्टिकल वेलोसिटी एंड current velocity of current. So drift velocity, velocity of electron and velocity of current is different. Velocity of current जो है of the order of current, light के velocity में आ जाते हैं. So there is a, so in AC current there is a concept जो है wave का है ना, so वो बताएंगे AC current पढ़ने के टाइम है ना. So this is the drift velocity concept. Now what is the different types of resistance and everything है ना. So different types of conductor. So in ohmic conductor, if you are putting, this is your current versus ये, this is perfectly ohmic conductor. Perfectly ohmic conductor I जो है जो V proportional to I. So this is the resistance है ना. So ये perfectly ohmic conductor. But एकदम वेरी गुड कंडक्टर के केस में, बहुत अच्छा कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये तो परफेक्टली ओहमिक, अच्छा थोड़ा सा नीचे, ये परफेक्टली ऐसा होता है. और हाई वोल्टेज में क्या है इसका, फिर करंट बढ़ते जाता है. सो दिस इज योर करंट, दिस इज वेरी गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर के केस में है ना. सो ये करंट ये बढ़ते जाता है. और फॉर केस ऑफ सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के केस में आप ये देखोगे, तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ही जो है ये करंट बहुत सर्टेन पार्टिकुलर 0.6 वोल्ट जैसे मानिए है ना, इसमें जो है ये वोल्टेज वर्सेस करंट एंड ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये देखोगे आप बाद में है ना. दिस इज फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर. So this is I versus proportion, so linear graph. So this is resistance and ये this resistance and conductance, this linear device, resistance ये सब है ना. and sometimes जो है semi conductor is a non linear device है ना, आप पढ़ोगे बाद में. non linear conductor, non linear जो है device and resistance is a this इस टाइप का, ये जो resistance है linear है ना, linear device है ना. और गैलियम आर्सेनाइड का एक मटेरियल देखेंगे, उसका रेजिस्टेंस बड़ा अजीब सा बिहेव करते हैं है ना, उसका भी प्लॉट करेंगे. गैलियम आर्सेनाइड का जो है ये ऐसा ये करके ऐसी होती है, मतलब इस गैलियम आर्सेनाइड ये गैलियम आर्सेनाइड का करंट वर्सेस वोल्टेज. सो एक पार्टिकुलर वोल्ट जो है इसमें जो है आपका जो है सेम करंट के लिए आप देखोगे, एक पार्टिकुलर सेम करंट के लिए आप देखोगे बहुत सारे वोल्टेज दिखते हैं है ना. सो एक यूनिक वोल्टेज की मतलब एक यूनिट करंट नहीं है. सो यहाँ पे देखिए जैसे इस पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे कैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो करंट डिक्रीज हो रहा है, ये वाला पोर्शन है ना. सो वोल्टेज बढ़ रहे हैं बट करंट डिक्रीज हो रहे हैं. दिस पोर्शन इज कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस. इवन दिस इज द नेगेटिव स्लोप ना, दिस स्लोप इज नेगेटिव है ना, this negative resistance. So this is the concept of negative resistance. Okay, करेंगे resistivity of material and temperature dependency है ना. So metal का जो resistivity कैसे कैसे डिपेंड करता है ना. So metal का जैसे एक metal and semiconductor में जैसे यहाँ पे बहुत सारे atoms है ना, atoms and free electrons. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा so उसके साथ कोलिशन होगा, और कोलिशन होने के बाद उसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, बट किस हिसाब से बढ़ेगा. सो मैथमेटिकली यू कैन सी, सो J इक्वल टू सिग्मा ई है ना. सो सिग्मा ई J इक्वल टू सिग्मा इनटू ई है ना, J इक्वल टू सिग्मा ई है ना, इक्वल टू जो है आपका NeVd है ना, और सिग्मा ई इक्वल टू NeVd क्या है, E टाउ ओवर m है ना. नाउ इसको वजह सिग्मा जो है, सो सिग्मा इक्वल टू जो है आपका n स्क्वायर टाउ ओवर m, और रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा है ना, सिग्मा इक्वल टू m ओवर n स्क्वायर टाउ.
सो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज वाइब्रेशन इंक्रीजेस, सो कोलिशन इंक्रीजेस, कोलिशन इंक्रीजेस मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, माने टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन वो डिक्रीज हो जाएगा ना, बहुत जल्दी जल्दी कोलिशन होगा, ये सब वाइब्रेट हो रहे हैं, ये भी वाइब्रेट हो रहे हैं, सो इसका दोनों का बीच का जो फ्री टाइम है ना, मीन फ्री पाथ जो है वो भी कम हो जाएगा, और जो है ये डिक्रीज होगा, मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई ये डिक्रीजेस मीन्स रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस, है ना। अब इसका प्लॉट क्या होगा, सो नाउ इट्स प्लॉट, कॉपर जो है, इस कॉपर का जो है आपको देखोगे तो ये आपका ये इस टाइप का वेरिएशन होगा, ये कॉपर का बहुत जल्दी जो है ना, कॉपर का रेसिस्टिविटी जो है आपका ये रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, नाइक्रोम का उतना वेरिएशन नहीं होती है। नाइक्रोम अगर देखेंगे, नाइक्रोम का केस में अगर देखेंगे तो ये अगर ये नाइक्रोम का केस में है ना, दिस इज रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्पर, ये नाइक्रोम, बट सेमीकंडक्टर के केस में वो प्लॉट करेंगे। सो फॉर योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के केस में अगर ये देखेंगे तो ये आपका जो है जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सो ये आपका नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बहुत जनरेशन होगा, एन एन वो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी रहते हैं, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, एन ऑल्सो इंक्रीजेस, एन इंक्रीजेस मीन्स जो है रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस, हाँ एन ये है ना सिग्मा इक्वल टू एन स्क्वायर है ना, सो हाँ सो इसका जो है इसके केस में जो है फॉर सेमीकंडक्टर के केस में जो होगा आपका, सो एन ये जो है आपका ये जो है एन काफी इंक्रीज होगा, सो इलेक्ट्रॉन, सो एन इंक्रीज मीन्स जो है आपका रेसिस्टिविटी बहुत कम होगा, सो ये आपका रेसिस्टिविटी टेम्परेचर, सो दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर, ओके। नाउ सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है ना, सो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये है ना, सो रेजिस्टेंस का एक जो वायर बाउंड एकदम जो है वायर बाउंड रेजिस्टेंस पहले होता था, अब कार्बन रेजिस्टेंस है ना, ये लो रेंज पे वायर बाउंड की जो है, जैसे नाइक्रोम मैंगानीन, इसका जो है नाइक्रोम, इसका वायर को ऐसा ये करके रेजिस्टेंस बना देते पहले, और कार्बन रेजिस्टेंस ये हाई रेंज के लिए यूज होती है, हाई रेंज के लिए। सो कार्बन रेजिस्टेंस देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर कोड्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे है ना, उसका कलर कोड का बेसिस में उसका रेजिस्टेंस कैसे कैसे ये होता है उसका भी हम चर्चा करेंगे। रेजिस्टिविटी, सो रेजिस्टिविटी का जो है हमने देखे थे, रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल टू रो जीरो इंटू वन प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी जीरो, सो टी जीरो में जो है आपका रो जीरो रेजिस्टिविटी है, सो इट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, सो दोनों टेम्परेचर में आपका ये रेसिस्टिविटी का है ना टेम्परेचर के साथ, सो ये डिफरेंट टाइप से, सो रेसिस्टिविटी ऑफ जो है आपका ये मेटेरियल कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इसका जो टेम्परेचर -6 -8 ऑर्डर में रहता है, और इसका जो है सेमीकंडक्टर का इन बिटवीन, बट ये इसका जो है 10⁵ to 10⁻10 बहुत जो है आपका बैड कंडक्टर या जो इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर के केस में, और सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर का बीच में लगभग रहते हैं ना, सो ये रेसिस्टिविटी तो देखे। आप कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे है ना, सो कार्बन रेजिस्टेंस फॉर हाई रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, सो कार्बन रेजिस्टेंस जो है उसका रेजिस्टेंस दो तरीके से चेक कर सकते हो, एक बाय यूजिंग कलर कोड, इसके ऊपर कुछ काला स्ट्रिप है, सो देयर इज 4 बैंड एंड आल्सो 5 बैंड ऑफ स्ट्रिप आल्सो देयर, यहाँ पे भी जो है आपका कार इसमें 5 2 3 4 5 5 बैंड भी रहता है ना, सो 5 बैंड, सो 4 बैंड एंड 5 बैंड का इसका चर्चा करेंगे है ना, सो 4 और बाय यूजिंग मल्टीमीटर, एक मल्टीमीटर आप यूज करके दोनों एंड में आप लगा लीजिए रेजिस्टेंस मोड यूज करके, सो उसमें सो एक बार आप कलर कोड से, so by using your color code you just determine what is the resistance and cross verify with multimeter, okay, so there is a different types of color, so 1 2 4 resistance के 1 2 is the जो है resistance digit
एंड ये दिस इज योर मल्टीप्लायर, है ना, एंड दिस इज योर टॉलरेंस, फोर्थ वन इज टीओ टॉलरेंस, है ना। अब मान लीजिए इन दोनों का कलर है, एक का कलर है ब्राउन, एक का कलर है रेड, सो दिस इज 1 2, और तीसरे का कलर है ऑरेंज 3, सो 3 मतलब इंटू 10⁻³ होगा, है ना। सो ये, और ये जो है टॉलरेंस, टॉलरेंस का जो कलर मान लीजिए गोल्ड 5%, सो ये क्या होगा 12,000 ओहम, ये 12,000 ओहम प्लस माइनस 5% इसका टॉलरेंस, इस तरीके से लिखें 12,000 या 12 के रेजिस्टेंस प्लस माइनस 5%। ये कलर रेंज इसमें देखो कैसे बी बी राय इस टाइप में आप याद रख सकते हो, है ना। सो है बी बी, तो आपको याद ये चार्ट आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप ये जो है ब्लैक 0, ब्राउन जो 1 इस टाइप का है ना, व्हाइट 9, और इसमें अगर टॉलरेंस में अगर रेड, ये फोर्थ बैंड में अगर रेड रहता है सो 2%, गोल्ड रहता है so 5%, एंड इट इज सिल्वर देन 10%, एंड फॉर 5 जो बैंड रेजिस्टेंस दिस इज 1 2 3, दिस इज योर डिजिट, कितना डिजिट रेजिस्टेंस, एंड दिस इज योर जो है मल्टीप्लायर, फोर्थ वन मल्टीप्लायर, एंड फिफ्थ वन इज टॉलरेंस। ओके, इसमें जैसे दो जो है डिजिट था, ये मल्टीप्लायर था एंड ये टॉलरेंस था। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो हाउ मच रेजिस्टेंस एंड क्रॉस वेरीफाई विथ योर मल्टीमीटर ऑल्सो। सो ये आज के लिए इतना ही। हमसे एक बार मार्केट से रेजिस्टेंस आपको अगर कहीं मिलता है तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देखिए, तो आपका ये आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, थैंक यू।